Very good morning, my dear students. Myself Siddharth, and this is my humble request that please don't go outside if it is not required, because pandemic is in on its high position and it is on the spike, and the various variants are already attacked in our country. Until unless you get the vaccines, you should be at your home. Okay? Don't go Yes, sir. outside, please. Please, please. Okay? Save yourself, your family, as well as your grandparents. Okay? Yes, sir. So, my humble request to you all, don't go outside. Okay? Yes, sir. And how many of you not still not take the doses of vaccines to their grandparents and parents? Please go to it. I will, if you want, I will send you the link as well to the website where you will register for the vaccine, and you will directly go to tell your parents that you should go on particular date. Okay, take the medicine first, take the vaccine first. Okay, and if Yes, anyone found any symptoms like cough, cold, and anything, he or Yes, sir. she Please send link. will definitely inform. Okay, okay. Well and good. Now move to our business. Now, yesterday I was told you that theoretically our chapter is completed. Okay. The last note, lecture number 8, actually it is preparing now. It is not done yet. So maybe today, tomorrow I will send it. But I just want to know, today is the revision day, right? Today I'll just take a revision. So I want to know from chapter number 2, take your books. Take your books. If you have any problem, you should ask me. Okay? I'll give you the time. You have enough time. You have to go. You have to take your book and check everything. And if you have found any problem, you are just ask me. Okay? Today is the revision class. Today is no topic. New topic will be discussed. Okay? Got it? yes, sir. I already informed you, na? Ki today is the revision class. Students, Yes, sir. check it. All students, Yes, sir. all students. Check, and if you have any problem in any topic, you are free to ask. And you have to subscribe my channel and hit the bell icon as well to get the latest notification. Okay? Yes, sir. Yes, sir. Okay. मेरे पास सब्सक्राइब कर दिया है। यस मिश्रा ने एक क्वेश्चन पूछा है. Sir, please tell me different types of ROM and PROM, EPROM, EPROM. Okay, very good. Thank you, Yash beta. And anything else? Wait. हाँ, different types of ROM और RAM. Sir, please send the link. किस का लिंक भेज दें? Okay. Now, today's topic is different types of ROM. Look, first of all, we need to understand ROM. What is ROM? Anyone know? Everyone know what is ROM?
Read only memory. What are you doing? Read only memory. Open your camera, all of you. Open your camera. I want to see what are you doing. Camera open करें. इससे पहले हमें अच्छे पाइप करेंगे. Oh, देखो देखो मेरा कपड़ा. दीदी कमीज दो clearly. Okay. The first is सब लोग ओपन करें कैमरा. ठीक है ना, तुम क्लास में तो प्रेजेंट है ना. students. Do you know what is ROM? Yes, sir. What is the full form of ROM? Read only memory. Read only memory, sir. Okay. You know that ROM stands for read only memory. And it is also comes in in primary memory. I was told you that there are two types of memory. First is primary memory, second is secondary memory. In the primary memory, there are two main types of memory: the RAM and the ROM. Okay, so I told you that the RAM is a temporary memory or a volatile memory which is lost once the power is off. But in case of ROM, it is a permanent memory. It is a permanent memory which is basically made from the semiconductors, and it is programmed by once. Okay, इसको एक बार program किया जा सकता है, ठीक है? And all the data and instructions are stored in this ROM. Okay, so if I say that ROM is a permanent memory which is programmed once. Okay, only once. इसको एक बार ही program किया जा सकता है, ठीक है? इसको बोलते हैं ROM. Okay, so this is called read only memory and it is permanent memory. इतना मैंने आपको बता दिया था इस टॉपिक पे ना. Yes, sir. ठीक है, मैंने इसके अलावा आपको इस बार डिफरेंट टाइप्स ऑफ ROM बताई थी, बताई थी? हाँ, No, sir. ROM डिफरेंट टाइप की नहीं बताई थी मैंने? कौन बोला नहीं बताई थी? ये बताइए जरा. सर बताई थी. बताई थी, कौन कौन सी बताई थी? जल्दी बताइए. 11, 12, 13, 14, हाँ, 16. कौन कौन सी बताई थी ROM? जल्दी बताइए बच्चे. ROM, sir. कैसे बच्चों? ROM को और अच्छी तरीके से समझने के लिए मैं आपको और अच्छे एग्जांपल देता हूँ. ROM को अगर समझना है तो आपको मैं और अच्छे एग्जांपल देता हूँ, ठीक है? ठीक है बच्चों, क्या होता है, जैसे मान लीजिए कोई भी इंस्ट्रक्शन है, कोई भी काम है, ठीक है? उसके लिए हमने एक प्रोसेसिंग कर दी है. जैसे मान लीजिए मेरा 15 मिनट में वॉशिंग मशीन जो है वो बंद हो जानी चाहिए, ठीक है? उस हर 15 मिनट में मेरी वॉशिंग मशीन जो है एक अलार्म भेजेगी, ठीक है? और है ना, तो इसके लिए मुझे बार बार प्रोग्रामिंग करने की जरूरत नहीं है, बार बार टाइम का सेट करने की जरूरत नहीं. वो ऑटोमेटिकली 15 मिनट बाद वो अलार्म भेजेगी, ठीक है, वॉशिंग मशीन मेरी. तो उसके लिए उसकी जो मेमोरी होती है उसमें हम लोग ROM का यूज करते हैं. किसका यूज करते हैं? ROM का, रीड ओनली मेमोरी का, ठीक है? परमानेंट मेमोरी होती है, इसमें डेटा लॉस नहीं होता है, ठीक है? तो मैंने आपको डिफरेंट टाइप्स ऑफ ROM. ओके, सबसे पहली ROM होती है PROM. सबसे पहली ROM कौन सी होती है? PROM. कौन सी होती है? PROM. फर्स्ट टाइप ऑफ ROM इज PROM. PROM. बताइए PROM का फुल फॉर्म क्या होता है? Programmable read only memory. किसने बताया? नाम क्या बच्चे आपका? Yes, Gupta. वेरी गुड. यस बेटा, तुम बहुत अच्छे लड़के लग रहे हो हमें. प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी क्या होता है? प्रोग्रामेबल Read only memory. कौन है ये बदतमीजी कर रहा? ओके, जो प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी होती है, इसको सिर्फ एक बार प्रोग्राम कर सकते हैं. इट कैन प्रोग्राम ओनली वंस एट द बिगिनिंग. इट इज प्रोग्राम्ड ओनली वंस at the time of manufacturing.
गॉट इट। जब ये बंद नहीं होती है बेटा रोम, उसी वक्त तभी इसको पहली बार प्रोग्राम किया जाता है, ये होती है पी रोम, प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी। ओके ओके। यस सर। दूसरे टाइप की रोम कौन सी होती है? EPROM 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 Erasable Programmable Read Only Memory। ये इरेजेबल प्रोग्रामेबल बच्चों, इसमें एक वर्ड ध्यान दीजिए, इरेजेबल। यानी इरेजेबल का मतलब क्या है? ये एक बार इरेज की जा सकती है, ठीक है, इसको इरेज कर सकते हैं बट एक बार। ओके, सो EPROM इज अ ROM which it is also a type of ROM. This type of memory allows user to erase the information stored on ROM chip and reprogram it again with new information. ठीक है, it allows भाई अब वहाँ पर It देखो allows- चार्जिंग मिशन लो। delete. It allows to reprogram the ROM after erasing the old information. पुराने इंफॉर्मेशन को मिटा करके नई इंफॉर्मेशन इसमें डिलीवर कर सकते हैं। ठीक है, ये होती है EPROM। समझ में आई बात? समझ में आई नहीं समझ में आई बात बच्चों? ठीक है, बच्चों इसमें जो होता है टू इरेज इंफॉर्मेशन, it use UV rays। इंफॉर्मेशन को हटाने के लिए किसका यूज होता है? यूवी रेस का। किसका यूज होता है? यूवी रेस का। समझ में आई बात? अल्ट्रावायलेट रेस इस चिप के ऊपर डाली जाती हैं और उसकी सारी पुरानी इंफॉर्मेशन डिलीट हो जाती है, इरेज हो जाती है। समझ में आई बात? यश मिश्रा बेटा, यश बेटा, समझ में आई बात? यस सर। यश मिश्रा, यश बेटा, यश मिश्रा, समझ में आई बात? यस सर। कंफर्म? यस सर। अच्छा, थर्ड वाली कौन सी होती है यश? याद है तुम्हें? थर्ड इज यस सर। EPROM, इलेक्ट्रिकली इरेजेबल प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी। ये जो इलेक्ट्रिकली इरेजेबल रीड ओनली मेमोरी है, इससे आपको बहुत कुछ समझ में आ जाएगा। बच्चों आपको पता होगा ये भी उसी तरीके की रोम है जस्ट, पर EPROM जो होती है थोड़ी एडवांस रोम है। ओके, ये थोड़ी एडवांस टाइप की रोम है। इसका जो यूज होता है बच्चे, इसमें भी जो डेटा होता है इसमें डिलीट कर सकते हैं इंफॉर्मेशन को, मगर इसमें हम लोग डेटा किसकी जो इंफॉर्मेशन है किसकी हेल्प से इरेज करते हैं? इलेक्ट्रिक सिग्नल्स की वजह से। किससे हेल्प करते हैं? रिड्यूस करते हैं विद हेल्प ऑफ इलेक्ट्रिक सिग्नल्स। इसमें हम लोग यूवी रेज का यूज नहीं करते हैं। जैसे आपने देखा होगा EPROM में किससे यूज डिलीट करते थे या इंफॉर्मेशन इरेज करते थे? यूवी रेज से।
मगर EEPROM से इंफॉर्मेशन किससे रिड्यूस करते हैं? विद द हेल्प ऑफ इलेक्ट्रिक पल्सेस। यही डिफरेंस होता है EROM और EPROM में। EPROM में इंफॉर्मेशन रिड्यूस होती है विद द हेल्प ऑफ UV रेज, और EPROM में इंफॉर्मेशन इरेज होती है विद द हेल्प ऑफ इलेक्ट्रिक पल्सेस। ओके, इलेक्ट्रिकली इरेज होती डेटा। ठीक है, समझ आई बात? यस सर। चलिए ठीक है, और कुछ पूछना है? अच्छा, एक किसी बच्चे ने पूछा है, सर प्लीज एक्सप्लेन IPO साइकिल। वेरी गुड। IPO साइकिल, देखिए बच्चों क्या होता है, IPO साइकिल में 3 चीजें होती हैं, इनपुट, प्रोसेस, ओके एक सेकेंड, इनपुट, प्रोसेस, आउटपुट। ओके। यू नो दैट इन IPO साइकिल जितना भी कंप्यूटर है वो इसी फंक्शंस पे, इसी प्रिंसिपल पे वर्क करता है। तो जो इनपुट होता है उसके लिए सबसे पहली जो चीज होती है वो होती है कीबोर्ड। क्या होता है? कीबोर्ड। कीबोर्ड, माउस, बहुत सारे आउट इनपुट डिवाइसेस मैंने बताए थे ना। हम कीबोर्ड की बात करते हैं। जो कीबोर्ड होता है वो सारी की सारी इंफॉर्मेशन जो होती है उसको किस में कन्वर्ट करता है? बाइनरी डिजिट्स में कन्वर्ट करता है। मैंने बताई थी आपको बात कि कंप्यूटर का जो मैकेनिज्म है, हार्डवेयर है, वो जो उसका प्रोसेसर है वो सिर्फ बाइनरी लैंग्वेज को समझता है। किसको समझता है? बाइनरी लैंग्वेज को समझता है। ठीक है, तो वो हर वर्ड की बाइनरी कन्वर्ट करता है। आप जो भी लिखते हो कंप्यूटर पे उसकी बाइनरी कन्वर्ट हो जाती है, किसके पास जाती है? प्रोसेसर के पास जाती है। किसके पास जाती है? प्रोसेसर के पास जाती है। ठीक है, तो ये जो प्रोसेसर होता है किस लैंग्वेज को समझता है? बाइनरी लैंग्वेज को समझता है। ठीक है, तो इनपुट डिवाइसेस में जितनी भी चीजें होती है सबसे पहले वो जैसे कीबोर्ड, माउस, वो सारी की सारी इंफॉर्मेशन किस में कन्वर्ट होती है? बाइनरी में कन्वर्ट होती है। किसके पास जाती है? प्रोसेसर के पास जाती है। प्रोसेसर के कितने? प्रोसेसर यानी कि CPU, प्रोसेसर यानी कि CPU। ठीक है, अच्छा प्रोसेसर जो होता है CPU के भी कितने मेन पार्ट होते हैं? 3 मेन पार्ट होते हैं। कितने मेन पार्ट होते हैं? 3 मेन पार्ट होते हैं। ठीक है, मेन पार्ट। मैंने बताई था कौन कौन मेन पार्ट होते हैं, यस सर। याद है? सर कंट्रोल यूनिट, हाँ, और अरिथमेटिक एंड लॉजिकल यूनिट, और कंट्रोल सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट टोटल सिस्टम को बोलते हैं, CPU को बोलते हैं। देखिए इसमें मेन 3 पार्ट होते हैं। फर्स्ट इज ALU व्हिच इज कॉल्ड अरिथमेटिकल एंड लॉजिकल यूनिट। The second one is MU, that is memory unit. Last but not least, that is CO, that is called control unit. Okay, Yes sir. got it? Yes So basically all the processor, all the information, all the things that will be you displaying in your computer is only be gone past by this processor, and all these 3 mechanism ALU, MU and CU, this is called the sub process. All these all the CPU use this sub process to get the output. Okay, once all the information will be processed, it will definitely display in the monitor or your computer screen or printer. So all the information is once the processed, it will be displayed in the monitor. It will display in the monitor. तो नहीं बात? Yes sir. तो ये बेसिक होता है IPO साइकिल। ठीक है, यही होता रहता है, इनपुट, प्रोसेस, आउटपुट। ठीक है, बताइए और कुछ? किसी बच्चे ने पूछा सर प्लीज एक्सप्लेन फ्लॉपी डिस्क ड्राइव। कौन है ये? किसी बच्चे ने पूछा IPO साइकिल क्या है? किसी बच्चे को PDF बनाना नहीं आता, ठीक है, मुझको कॉल करिएगा 1 बजे तक, मैं आपको बताऊंगा PDF कैसे बनाते हैं। ठीक है, डोंट वरी। सर आता है। शिखर मिश्रा है, चलो बता दूंगा, शिखर मिश्रा मैं बता दूंगा, डोंट वरी। अच्छा, आप किसी बच्चे ने पूछा है कि सर फ्लॉपी क्या होती है। बच्चों क्या होता है, फ्लॉपी डिस्क जो होती है बहुत ही पुरानी टेक्नोलॉजी हो गई है। मैंने बताया था मैं पुरानी टेक्नोलॉजी को इतना ज्यादा फोकस नहीं करता हूँ, मैं नई टेक्नोलॉजी पे यकीन करता हूँ और नई चीजों को बताने में यकीन रखता हूँ। मैं फ्लॉपी डिस्क मैंने नहीं बताया था आपको, ठीक है, और मैं समझता हूँ कोई जरूरत भी नहीं है।
ठीक है, उसकी बजाय आप लोग मुझसे समझ लीजिए टाइप्स ऑफ हार्ड डिस्क। ठीक है, फ्लॉपी डिस्क थोड़ी पुरानी हो गई इसलिए मैं उसको नहीं बता रहा हूँ, मैं आपको हार्ड डिस्क बता देता हूँ। ठीक है बच्चों, हार्ड डिस्क जो होती है 2 टाइप की होती है। वो ये हार्ड डिस्क का नाम सुना बच्चों ने? बच्चों, यस सर। हार्ड डिस्क बताइए, प्राइमरी मेमोरी होती है, सेकेंडरी मेमोरी होती है? जल्दी बताइए। सेकेंडरी। क्या? सेकेंडरी। 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 अच्छा, सेकेंडरी मेमोरी होती है तो बताओ इसमें डेटा परमानेंट स्टोर होता है कि टेम्परेरी स्टोर होता है? परमानेंट। परमानेंट। ओके बच्चों, आप यस सर। लोगों के पास अगर कंप्यूटर होगा, अगर आप लोग के पास कंप्यूटर होगा तो आपको पता होगी ये बात कि जितने भी हम लोग फाइल सेव करते हैं कंप्यूटर में, वो सारी की सारी हार्ड डिस्क में स्टोर होती है। किसमें स्टोर होती है? हार्ड डिस्क में स्टोर होती है। हार्ड डिस्क में। So if you talk about hard disk, so hard disk is which is in short it is called HDD. Hard disk is a storage device which stores the data and information permanently. Okay, it is a secondary storage device. Okay, basically the storage capacity is around 1 GB to 50 GB, or even it is comes in terabyte as well. Okay, so the memory capacity, storage capacity of this is very high. Okay, storage capacity of hard disk is very high. Okay, there are basically 2 types of hard disk. There are दो तरीके की हार्ड डिस्क आती हैं। ओके, पहली होती है कॉम्पैक्ट डिस्क। नहीं, रुक जाओ, सबसे पहली आती है आपकी होती है उसमें ऑप्टिकल स्टोरेज मीडिया। अच्छा रुको, हो गया, 1 सेकंड रुकिए। जो हार्ड डिस्क होती है बच्चों, आजकल जो पॉपुलर है वो है SSD। यानी सॉलिड SSD हार्ड डिस्क। SSD हार्ड डिस्क क्या होती है? SSD हार्ड डिस्क को बच्चों क्या कहते हैं? इसको बोलते हैं सॉलिड स्टेट डिवाइस। ओके, SSD। एक मिनट, just wait for a moment. बच्चों, आजकल जो एडवांस टेक्नोलॉजी में मैंने बताया आपको, ये SSD वाली हार्ड डिस्क यूज होती है। SSD वाली हार्ड डिस्क जो होती है बच्चों, बहुत फास्ट होती है, बहुत फास्ट होती है। और ये जितने भी आजकल मॉडर्न कंप्यूटर्स आते हैं उनमें यूज होती है। ये इनमें जो होती ये जो होती है, ये ऑप्टिकल लाइट से डेटा को रीड करती है। दे रीड द डेटा ऑप्टिक बाय विद द हेल्प ऑफ ऑप्टिकल लाइट्स। ओके, द प्रोसेसिंग स्पीड इज वेरी हाई। ओके, the data read by the processor is very high. Okay, that's why it is called SSD. Cost is also very high. तो दूसरे टाइप की होती है, वो होती है नहीं बोला बंदा रहो गधे। दूसरी वाली जो रोम होती है वो होती है HDD। HDD का फुल फॉर्म क्या होता है, कोई बताएगा? HD होता है हार्ड डिस्क ड्राइव। क्या होती है? हार्ड डिस्क ड्राइव। इसमें बच्चों एक डिस्क लगी होती है। क्या बोलते हैं? डिस्क लगी होती है। यानी कि जो HDD होती है, ये जो हार्ड डिस्क होती है, इसमें बच्चों क्या होता है, ये इसमें डिस्क लगी होती है बेसिकली इस तरीके से, इसमें डिस्क लगी होती है। ठीक है, जैसे आप लोगों ने पहले जमाने में वो देखा है, अरे क्या होता है जिसमें एक म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट होता था, ग्रामोफोन। ग्रामोफोन देखा आप लोगों ने? यस सर। ग्रामोफोन में एक डिस्क होती थी, इसके बीच में छोटा सा छेद होता है। ठीक है, ये है डिस्क लगी होती है इसमें, जिसको जिसको पैलेट जिसको 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 पैलेट बोलते हैं या प्लेट्स बोलते हैं। ठीक है,
इस डिस्क को रीड करता है, इस डिस्क को रीड करने के लिए एक रीडर होता है, ठीक है, ऑप्टिकल रीडर होता है, और ये डिस्क लगातार घूमती रहती है। ओके, जितनी जल्दी जल्दी डेटा ये घूमती है उतनी जल्दी जल्दी ये डेटा रीड करता है, ठीक है। तो इसकी स्पीड आरपीएम से भी मेजर करते हैं, 200 आरपीएम, 400 आरपीएम, 600 आरपीएम, ये होती है इसकी स्पीड होती है, ठीक है। पेज नंबर, एक सेकंड रुको, बताते हैं आपको, एक सेकंड रुकिए आप। फोर। बच्चों मैं आपको एक स्क्रीन शेयर कर रहा हूं, ये देखिए, ये देख रहे हैं आप लोग, बच्चों देख रहे हैं आप, दिख रहा है? यस सर। ये देखिए, ये बेसिकली एक डिस्क होती है, जिसको प्लेट्स बोलते हैं, ठीक है। ओके, दिस इज डिस्क। अरे कौन बोला है? दिस इज द रीडर, ये रीडर होता है जो डेटा को रीड करता है, दिस इज रीडर। ओके, ऑप्टिकल रीडर होता है, यही इसको डिस्क को रीड करता है, ठीक है। जितनी तेजी से डिस्क घूमती उतनी तेजी से ये जो होता है डेटा रीड करता है। ऑब्वियस बात है, इसमें ये जो होता है, जब भी ये घूमती थोड़ी आवाज आती है, इट विल प्रोड्यूस साउंड्स। ओके, तो कभी कभी आप लोग देखते होंगे किसी किसी कंप्यूटर में आवाज आती है ना, जब कंप्यूटर खुलता है तो, ये जब कॉपी हो रहा होता है तो पेस्ट हो रहा होता है, ठीक है। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि उसमें कौन सी डिस्क, हार्ड डिस्क लगी हुई है, HDD। कौन सी लगी हुई है? HDD, हार्ड डिस्क ड्राइव। क्या फुल फॉर्म होता है HDD का? हार्ड डिस्क ड्राइव। ओके, समझ आई बात बच्चों? समझ में आई बात? नहीं समझ में आई? आ गई। यस सर। दूसरी कौन सी होती है? दूसरी हार्ड डिस्क कौन सी होती है? SDD, सॉलिड स्टेट ड्राइव। ये देखो छोटी होती है साइज में। SDD देखिए बहुत छोटी होती है, ये बहुत छोटी होती है। ये SDD होती है, बहुत छोटी होती है साइज में। ये देखिए, इसमें किसका यूज होता है? ट्रांजिस्टर का यूज होता है। देखिए, ये SSD ड्राइव होती है, इसमें डिस्क नहीं लगी होती, इसमें ट्रांजिस्टर, छोटे भी कंडक्टर्स लगे होते हैं, चिप्स लगी होती है, ठीक है। इन चिप्स में डेटा स्टोर होता है। तो बनी बात है, इसकी स्पीड काफी ज्यादा होती है SSD की, और ये थोड़ी महंगी भी आती है, ठीक है। तो नहीं बात समझ में आई? बात ही समझ में आई बच्चों? समझ में आई? नहीं समझ में आई बात? यस सर। यस सर। SSD में लगी होती है चिप्स, ओके, और हार्ड, और ये तुम्हारे HDD में लगी होती है, डिस्क लगी होती है घूमने वाली, ठीक है। SSD जो होती है उसमें कोई घूमने वाला सिस्टम नहीं होता, इसलिए इसमें साउंड कोई प्रोड्यूस नहीं होता है, ठीक है। इसीलिए ये वाली हार्ड डिस्क ज्यादा बेटर कहलाती हैं, SSD वाली, ठीक है। मगर ये थोड़ी महंगी होती है SSD, सॉलिड स्टेट डिस्क थोड़ी महंगी होती है, ठीक है। समझ में आई बात? यस सर। चलिए, थैंक यू वेरी मच। चलिए ठीक है, हो गया बच्चों? यस सर। मैं आपका किसी दिन अब टेस्ट लूंगा, ठीक है। आपको नोट्स मिल जाएंगे लेक्चर नंबर 8 के, ठीक है। अब मैं कल हो सकता है आपका टेस्ट भी ले लूं, ठीक है। तो सब पढ़ के रखिएगा, ओके क्लास? यस सर। ओके, एनीथिंग एल्स? चलिए ठीक है क्लास, थैंक यू। थैंक यू सर।